Hello everyone, welcome to Others English classes and welcome to yet another important video in the History of English Literature series. So far we have covered 10th videos in the series and we have also covered Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, Age of Chaucer, Age of Revival, Elizabethan Age, Jacobean Age, Restoration period, and now today in this 11th video we are going to talk about Romantic Age. So Romantic Age is said to be one of the most period in the history of English literature. Okay, without any delay, let's get started. The Romantic Age. Romanticism was an artistic, literary, musical and intellectual movement that organized in Europe towards the end of the 18th century. Romanticism was characterized by its emphasis on emotion and individualism as well as glorification of all the past and nature. So preferring the medieval rather than the classical. It was partly a reaction to the Industrial Revolution and the aristocratic social and political norms of the Age of Enlightenment and the scientific rationalization of nature and all components of modernity. So, the Romantic period in English literature began with the publication of William Wordsworth and Samuel Coleridge's lyrical ballads in 1798. And the end of this accession of Queen Victoria in 1837. So, Romance period coincided with the revolution in France and America and therefore it is also known as the Age of Revolution. Why it is called Age of Revolution? The French Revolution was battle of achieve equality and remove oppression incurred by the oppressive King Louis XVI. So, people of France were agreed by increased taxation to support their country's involvement in the American Revolution and oppressive feudal system, crop failure and other economic difficulties. So that the French Revolution began in 1789. And the effect of French Revolution. So here a question arising in our mind. What is the effect of French Revolution? The effect of French Revolution did not confine to France only. It started a revolutionary fever in England. According to David Cody, the French Revolution was not only a crucial event considered in the context of Western history, but also perhaps the single most crucial influence on British and intellectual, philosophical and political life in the 19th century. And the writers of the Romantic period were inspired by the ideas of the French Revolution and tried to translate this idea into the realm of literature. The diverse political changes and the triumph of democracy in the period ended with the passage of Reform Bill in 1832. Now we will talk about what was the social and economic background of the Romantic Age. So, towards the end of the 18th century, major changes in agriculture, manufacturing, transport and technology took place in England. The first phase of Industrial Revolution was from about 1750 to 1850. Industrial Revolution had its own problems and it is also led to social unrest among the working class who were left jobless due to advent of machine. गाइस, आज हम लोग रोमांटिक एज को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने हिस्ट्री लिटरेचर की शुरुआत से एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर के आज रेस्टोरेशन एज तक को हमने शेक्सपियरियन पोइट्री को इन सब को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है और आज हम लोग रोमांटिक एज को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल लिटरेचर बैकग्राउंड है, उन सब को आज हम लोग डील करने वाले हैं। और आज हम लोग रोमांटिक एज के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और लिटरेचर बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं। 1789 टू 1799 इन दिनों फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज को
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया था। फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सब से फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। नॉट ओनली फ्रांस, बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वे सारे भी इससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में पड़ा था, क्योंकि डेमोक्रेसी को लाने में सबसे बड़ा रोल ब्रिटेन का ही था। सेकुलरिज्म को लाने में ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि वे ये मानते थे कि सभी को समानता का अधिकार है और सभी को इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सोशल मूवमेंट, एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पुअर रिलीफ, गरीबी को खत्म करो, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रिजन कंडीशंस, इट मीन्स जेल की कंडीशन में सुधार लाना है, ये सब चल रहा था। अगर कम शब्दों में कहूँ तो समाज में लोग चाहते थे कि समाज में भाईचारा पैदा हो, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही थी, मशीन का उपयोग बढ़ रहा था। लेकिन इन्हीं दिनों इंग्लैंड के सामने एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे आयरिश पर्सन इंग्लैंड में इमिग्रेट कर रहे थे। इसी वजह से इंग्लैंड और आयरिश के बीच में क्लैश हो रहा था। नतीजा ये हो रहा था कि इंग्लैंड में झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे थे, और बहुत सारे सोल्जर्स को भी जॉब से निकाला जा रहा था, क्योंकि अब उन सोल्जर्स की जरूरतें खत्म हो गई थी। और यही वजह थी कि इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। और यहीं तक सीमित नहीं हुआ, 1819 में इंग्लैंड में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया था, और जो वर्किंग क्लासेस थे इंग्लैंड में वो सारे एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे थे, मतलब इंटरेस्ट लेने लगे थे। पढ़े लिखों की संख्या भी बढ़ रही थी। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि क्रिश्चियन जो रिलीजियस था, क्रिश्चियन धर्म था, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो रहे थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जैसे जैसे इंग्लैंड की सरकार बदलती थी वैसे वैसे ही इन दोनों रिलीजियंस ग्रुप की कंडीशन भी बदलती है। जैसे कि कैथोलिक रिलीजियन की कंडीशन 17वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। इन लोगों पे बहुत जुल्म होते थे, और अगर कोई कैथोलिसिज्म को अपना लेता था, कैथोलिक रिलीजियन को, तो उनको देशद्रोही माना जाता था। और यही नहीं, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते थे, जो बड़े बड़े पोजीशन होते थे, उन सबसे कैथोलिक रिलीजियंस के लोगों को एकदम दूर रखा जाता था। उन्हें कोई भी इस तरह का राइट्स नहीं दिया जाता था। लेकिन रोमांटिक एज में ऐसा नहीं था। रोमांटिक एज में दोबारा से इन लोगों को रिलीफ मिलता है। इस एज में गवर्नमेंट कैथोलिक के लिए सिंपैथिक थी, वो सिंपैथी इसके लिए दिखाती थी। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि सोसाइटी में फ्रेटर्निटी आ रही थी, भाईचारा आ रहा था, तो इसी वजह से इन लोगों की कंडीशन भी सुधर रही थी। और इसी एज में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है 1799 में, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़े रुकावट थे टीपू सुल्तान। यहाँ पर मैंने कुछ ही मिनटों में रोमांटिक एज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सब बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस में ये पता चल सके कि रोमांटिक एज में चल क्या रहा था। अब अगर हम बात करते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत किसको माना जाता है, तो द ओपनिंग मोमेंट 1785 एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद 1789 में जब फ्रेंच Now move on to the literary background of the Romantic age. So generally speaking, the Romantic moment in literature is characterized by a shift from the structured and intellectual and reason approach of the 1700 to the use of imagination. रोमांटिक एज का लिटरेचर सिर्फ एक टर्म से डोमिनेटेड था, और आपको बता दूं कि वो टर्म था इमेजिनेशन। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार इस एज में इमेजिनेशन को पहली बार इनकाउंटर किया गया था। इस एज में इमेजिनेशन पहली बार आई थी। इससे पहले इमेजिनेशन ने किसी भी एज को इन्फ्लुएंस्ड नहीं किया था। अगर रोमांटिक एज के जैनर की बात करें तो 4 मेजर जैनर थे: पोइट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन और ड्रामा। So we are talking about imagination, freedom of thought and expression, and idealization of nature. Romantics value emotions, passions and individuality in place of logic and reason. So instead of embarrassing politics as writer of some other eras might have done, the romantic turned to the nature for self-fulfillment
and they were turning away from the values and idea of the previous era, embarrassing new ways in impressing their imagination and feelings. So through romantic period consists of two generation of poet like the first generation's poets are William Wordsworth, S.T. Coleridge, William Blake, Robert Southey, and the second generation's poets are Lord Byron, John Keats, P.V. Shelley. यहाँ पर रोमांटिक एज में दो तरह के दो कैटेगराइज के राइटर्स हुआ करते थे। पहले वाले जनरेशन के जो पोइट्स होते थे, ये सारे सवाल हमारे यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स कौन कौन से थे और सेकंड जनरेशन के पोइट कौन कौन से थे। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लैक और रॉबर्ट सदी, ये सब फर्स्ट जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। एंड लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, ये सब सेकंड जनरेशन के पोइट्स काउंट किए जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के सबसे बड़े पोइट कंसीडर किए जाते हैं। इनकी एजुकेशन एट लैंकशायर में हुई थी और इनकी हायर स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ जब 1790 में फ्रांस गए थे तो वहाँ से ये, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इनके जो वर्क्स थे उन्होंने लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया। और 1796 में बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप विथ कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के साथ इनकी फ्रेंडशिप होती है। और ऐसा माना जाता है कि एस.टी. कॉलरिज से मिलने के बाद वर्ड्सवर्थ का राइटिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया था। और इसी का ओवरकम था कि 1798 में दोनों के फ्रेंडशिप ने एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छा वर्क लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया। ये एक ब्रांड माना जाता है लिटरेचर में। दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया था। इस एज के लिए लिरिकल बैलेट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1843 में इनको इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट भी बनाया जाता है। और इससे पहले रॉबर्ट सदी थे, उनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एस.टी. कॉलरिज की, तो इनका एक वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और ये बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और इस कंप्लीट वर्क को 23 चैप्टर्स में लिखा गया है। और इन 23 चैप्टर्स को 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट सदी, इन लोगों को लेक पोइट कंसीडर किया जाता था, क्योंकि ये सारे लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं रॉबर्ट सदी की। रॉबर्ट सदी अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोइट थे। और इतने फेमस हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये 30 सालों तक एज अ पोइट लॉरिएट बने रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी इस फेम को विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल कॉलरिज के नाम का ग्रहण लग गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट सदी के बाद पोइट लॉरिएट बने थे। और इसी टाइम पीरियड में विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब भी थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के। अब हम बात करते हैं जैन ऑस्टिन की। जैन ऑस्टिन इस पीरियड की बहुत ही फेमस लेडी राइटर थी और ये इस रोमांटिक एज की मोस्ट फेमस राइटर हैं। इनकी नॉवेल्स बहुत ही आयरनिक होती थी, छोटी छोटी बारीकियों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और 18th सेंचुरी के नॉवेल्स पर ये क्वेश्चन अराइज करती थी। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड बायरन, पी.वी. शैली और जॉन कीट्स की। और गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ 19th सेंचुरी के शुरुआत के 20 सालों में इन तीनों ने पोइट्री लिखी थी। और इन तीनों में दो चीज़ें सिमिलर थी। इन तीनों की बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती है और दूसरा, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आया रोमांटिसिज्म का, तब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। और इन तीनों ने रोमांटिसिज्म को एक नए सिरे से नए तरीके से बताना शुरू किया था। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड बायरन अपने टाइम पीरियड के जीनियस राइटर्स में से थे।
लेकिन शैली, कीट्स, इन सबको इनकी डेथ के बाद ही फेम मिली थी। पीवी शैली ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे थे, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, और कीट्स की डेथ पर एक एलिजी लिखी थी, एडोनाइस। इसके अलावा वर्ल्ड की एक फेमस सोनेट है, ओज़ोमैंडियस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जीते जी कोई बड़ी फेम नहीं मिली, लेकिन आने वाले पोइट्स के लिए जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम बटलर, उन लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीवी शैली की वाइफ थी मैरी शैली। मैरी शैली इनकी सेकंड वाइफ थी और उन्होंने भी एक फेमस वर्क लिखा है, फ्रैंकेनस्टाइन करके, जो कि एक गॉथिक एंड साइंस फिक्शन नॉवेल थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है ये नॉवेल। और अगर हम बात करते हैं जॉन कीट्स की, तो उन्होंने भी ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ग्लेशियर ऑन, ऑड टू ऑटम, और भी बहुत सारे फेमस वर्क दिए हैं जॉन कीट्स ने। तो इन सब पोइट्री ने जॉन कीट्स को बहुत ही फेमस पोइटर बना दिया अपनी एज का। तो गाइज, ये था रोमांटिक एज पे हमारा ओवरऑल व्यू, और यहीं पे हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।